Make your body straight, relax. We'll do 15 minutes of Sandhya. Make your body straight, relax. Make your cell phones in silence mode. Inhale slowly, deeply. With exhaling, we'll recite a long Om and repeat it for 3 times. So start to inhale. स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन भी कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते हैं तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। So you have water in front of you. You take water in your right palm and sip it for 3 times. 3 बार अपने आप आचमन कर लीजिए। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शम्योरभिस्रवन्तु नः। 3 बार आचमन कर लीजिए। दीपक जी आचमन करिए। तीन बार अपने आप। अब बाएं हाथ में पानी ले लीजिए। टेक वाटर इन योर लेफ्ट पाम एंड विल टच डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। जसवीर जी को फॉलो करिए। ओम वाक वाक, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुश्चक्षुः, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्याम यशो बलम्, ओम करतल कर पृष्ठे। Take a little more water. Again, this time you will sprinkle. ओम भूः पुनः तु शिरसि, ओम भुवः पुनः तु नेत्रयोः, ओम स्वः पुनः तु कंठे, ओम महः पुनः तु हृदये, ओम जनः पुनः तु नाभ्याम्, ओम तपः पुनः तु पादयोः, ओम सत्यं पुनः तु पुनः शिरसि, ओम खं ब्रह्म पुनः तु सर्वत्र। Okay, make your body straight. We'll do again the pranayam, but this time we will inhale, breathe in. With breathing it out, hold it outside, and we'll do it for 3 times. Start to inhale and exhale and hold. Om bhuh, Om bhuva, Om swaha, Om maha, Om janah,
Om Tapah, Om Satyam, Om Bhuh, Om Bhuvah, Om Swaha, Om Maha, Om Janah, Om Tapah, Om Satyam. Om Bhuh, Om Bhuvah, Om Swaha, Om Maha, Om Janah, Om Tapah, Om Satyam. Relax. Om Ritam cha Satyam cha Viddha tapasodhyajayata tato ratrajayata tatah samudro varnavah. The meaning: the eternal law and the primordial matter were manifested by the God's omnipotence. Then the darkness of deluge appeared. Then the great expanse of sparkling particles and dense form of water came into being. Om samudra dharnavadadhi samvatsaro ajayata ahoratrani vidadhat vishwasya mishato vashi. After the creation of the plasmic ocean, the division of time came into existence. The controller of the universe devised the days and the nights without any effort. Om Surya Chandra Masaudhata Yatha Purvamakalpayat Divam cha Prithivim Chantariksha Matho Swaha. The support of the universe brought into existence the stars and the planets, such as the sun and the moon, the earth, and the celestial region, the mid-space, and the other luminous bodies in this cycle as in the previous ones. Om Shanno Devi Ravhishtaya Apo Bhavantu Pitaye Shamyo Ravisravantu Naha. Om Prachidigagniradipatirasito Rakshitaditya Ishavaha Tebhyo Namo Dipatibhyo Namo Rakshitrubhyo Nama Ishubhyo Nama Evhyo Astu Yosmandveshtiyam Vayam Dushmastam Vojambhe Dadmaha. Om Dakshina Digindro Dipatistiraschiraji Rakshita Pitara Ishavah Tebhyo Namo Dipatibhyo Namo Rakshitrubhyo Nama Ishubhyo Nama Evhyo Astu Yosmandveshtiyam Vayam Dushmastam Vojambhe Dadmaha. Om Pratichi Digvaruno Dipati Pridaku Rakshitannamishavah Tebhyo Namo Dipatibhyo Namo Rakshitrubhyo Nama Ishubhyo Nama Evhyo Astu Yosmandveshtiyam Vayam Dushmastam Vojambhe Dadmaha. Om Udichi Diksomo Dhipati Swajo Rakshita Shanirishavah Tebhyo Namo Dhipatibhyo Namo Rakshitrubhyo Nama Ishubhyo Nama Evhyo Astu Yosmandveshtiyam Vayam Dushmastam Vojambhe Dadmaha. Om Dhruvadik Vishnuradhipati Kalmashagrivo Rakshita Virudhaishava Tebhyo Namo Dhipatibhyo Namo Rakshitrubhyo Nama Ishubhyo Nama Evhyo Astu Yosmandveshtiyam Vayam Dushmastam Vojambhe Dadmaha. Om Urdhvadik Brihaspatiradhipati Shutro Rakshita Varshamishavaha Tebhyo Namo Dhipatibhyo Namo Rakshitrubhyo Nama Ishubhyo Nama Evhyo Astu Yosmandveshtiyam Vayam Dushmastam Vojambhe Dadmaha. Om Udvayantamasasparisvaha Pashyanta Uttaram Devam Devatra Surya Maganma Jyotiruttamam. Om Udutyam Jata Vedasam Devam Vahanti Ketava Drishe Vishwaya Suryam.
Om Chitram Devanamudagadaniikam Chakshurmitrasya Varunasya Agnehe Apradyava Prithvi Antariksham Surya Atma Jagatastastushasya Swaha. Om Tat Chakshurdevahitam Purasta Shukramucharat Pashema Sharadah Shatam Jivema Sharadah Shatam Shrunuyam Sharadah Shatam Prabravaam Sharadah Shatam Adina Syama Sharadah Shatam Bhuyascha Sharadah Shatat. Om Bhurbhuvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Ishvara Dayanidhe Bhavat Kripayanena Japopasanadi Karmana Dharmartha Kama Mokshanam Sadhyah Siddhir Bhavennah. Om Namah Shambhavaya Cha Mayo Bhavaya Cha Namah Shankaraya Cha Mayaskaraya Cha Namah Shivaya Cha Shivataraya Cha. Om Shanti Shanti Shanti. So with this, Sandhya is concluded. So now Ishvara Stuti Prarthana Upasana. Om Vishwani Deva Savitarduritaani Parasuva Yadvadram Tanna Asuva. Om Hiranyagarbha Samavartatagre Bhutasya Jatah Patireka Asit Sadadhara Prithivim Dyamute Mam Kasmai Devaya Havisha Vidhema. Om Ya Atmada Balada Yasya Vishwa Upasate Prashisham Yasya Devaha Yasya Chaya Amritam Yasya Mrityuh Kasmai Devaya Havisha Vidhema. Om Ya Pranato Nimishato Mahitvaika Idraja Jagato Babhuva Ya Ishe Asya Dvipadascha Tushpadaha Kasmai Devaya Havisha Vidhema. Om Yena Dyaurugra Prithvi Cha Dridha Yena Swahastabhitam Yena Nakaha Yo Antarikshe Rajaso Vimana Kasmai Devaya Havisha Vidhema. Om Prajapate Natvadeta Nyanyo Vishwajatani Parita Babhuva Yatkamaste Juhumastanno Astu Bhayam Syamapatayorayinam. Om Sano Bandhurujanita Savidhata Dhama Niveda Bhuvanani Vishwa Yatra Deva Amritamanashana Tritiye Dhamanna Dhirayanta. Om Agnena Yasupatharaye Asman Vishwani Deva Vayunani Vidwan Yoyodhyasmajjuhuranameno Bhuishtham Te Nama Uktim Vidhema. The summarized meaning of these prayers. Divine Creator, you are the Lord of all beings. You are the giver of life. You are the supreme among all animate and inanimate things of the world. You are the sole ruler of all the creatures. O God, please remove all the ills and evils from us and endow us with all that is noble. O God, abode of bliss, we offer our oblations to you with devotion. O God, the self-effulgent being, you are the giver of spiritual and physical strength. You are meditated upon by the whole universe. You are our creator, friend, and support. You know everything, every place, and every region. Please lead us through the path of virtue to prosperity.
As you know all the paths of actions, please keep us away from evil deeds. We bow to you with reverence again and again. So today, officially, we have पूनम जी and दीपक अग्रवाल जी और उनके बच्चे प्रिशा अग्रवाल and Divisha Agarwal. So they are today part of this havan to celebrate birthdays of their two kids. Okay, अब हम हवन करेंगे, आचमन करेंगे हवन से पहले. तो take water in your right palm, with every swaha we'll sip it and we'll do it for 3 times. Om amritopastaranamasi swaha. Again, Om amritapidhanamasi swaha. और एक बार, ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीहि श्रयताम स्वाहा. हाथ पहुंच के बाएं हाथ में पानी ले लीजिए अंग स्पर्श के लिए. Take water in your left palm and we'll touch different body parts. ओम वाङ्मास्यस्तु माउथ. ओम नसोर में प्राणोऽस्तु नोज. ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु आइज. ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु. ओम बाहोर में बलमस्तु. ओम ऊर्वोर्मा ओजवस्तु. ओम अरिष्टानि में अंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु. ऑल ओवर योर बॉडी. सो जिनके पास लंबी सी स्पून है, होल्ड इट. सम कपूर ले लीजिए और उसको जलाएं. ओम भूर्भुवः स्वः. कपूर दे दीजिए पहले उनको. बच्चे होल्ड करो. हाँ, टेक द अदर स्पून. जब ठीक से अग्नि जल जाए तो अंदर डालिएगा. ओम भूर्भुवः स्वर्द्यौरेव भूम्ना पृथिवी वरेम्णा तस्यास्ते पृथिवी देव यजनि पृष्ठे अग्निमन्नादामन्ना द्याया दधे. Put the fire inside the havan कुंड. Make sure the fire is properly inflamed. चेक कर लीजिए अग्नि ठीक से जल रही कि नहीं. उसमें कुछ समिधा या घी डालना है तो डाल दीजिए. राकेश जी जरा देख लीजिए आग ठीक से जल रही कि नहीं. ओके. ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते संसृजेथामयं च अस्मिन् छदस्ते द्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत. ओके, समिधाधान. So those who have 3 wood sticks in front of you, take 1 wood stick. With every swaha, you will put inside the fire. Remember, the 3 wood sticks are for the 3 times. Om ayanta idma atma jata vedastene dhasvavardhasva chedhavardhaya chasman prajaya pashubhir brahma varchasenana dena समेधया स्वाहा. इदमग्नये जातवेदसेदन्नमः. ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन. ओम सुसमिधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा. इदमग्नये जातवेदसेदन्नमः. ओम तन्त्वा समिद्विरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठयाः स्वाहा. इदमग्नये अंगिरसेदन्नमः. Okay, so now ghee ki ahuti, the offering of ghee. Hold the spoon. With every swaha you have to offer ghee. ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेन्द्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय
चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नादेन समेधया स्वाहा जातवेदसेदन्नमम ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेने दस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नादेन समेधया इदमग्नये जातवेदसेदन्नमम ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेन्द्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नादेन समेधया इदमग्नये जातवेदसेदन्नमम ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेन्द्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नादेन समेधया इदमग्नये जातवेदसेदन्नमम ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेने दस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नादेन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसेदन्नमम. So next is Jala Prasechan. So we will sprinkle water in 4 directions. First in east. Om Adite Numanyaswa. Now in west. Om Anumate Numanyaswa. North. Om Saraswati Numanyaswa. Om Deva Savita Prasubhayajyam Prasubhayajyapatim Bhagaya Divyo Gandharvah Ketapuh Ketanna Punatu Vachaspatir Vacham Nahaswadatu. Again hold your spoon. With every swaha will offer ghee. Om Agnaye Swaha Idam Agnaye Idannamama. Om Somaya Swaha Idam Somaya Idannamama. Om Prajapataye Swaha Idam Prajapataye Idannamama. Om Indraya Swaha Idam Indraya Idannamama. Om Bhuragnaye Swaha Idam Agnaye Idannamama. Om Bhuvarvayave Swaha Idam Vayave Idannamama. Om Swaradityaya Swaha Idam Adityaya Idannamama. Om Bhurbhuvah Swaragnivaayavaditebhyah Swaha Idam Agnivaayavaditebhyah Idannamama. सुष्टकृत अगर हो तो ले लीजिए, नहीं तो घी की आहुति. ओम यदस्य कर्मणो त्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निष्टस्विष्टकृद्विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहूतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सुहूताहुते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा इदमग्नये स्विष्टकृते दन्नमम. घी की आहुति. ओम स्वाहा इदं प्रजापतये दन्नमम. ओम भूर्भुवः स्वः अग्न आयुंसि पवस आसुवोर् जमिषं च नः आहारे बाधस्व दुच्छुनां स्वाहा इदमग्नये पवमानाय इदन्नमम. ओम भूर्भुवः स्वः अग्निऋषिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः दमीमहे महागयम्. इदमग्नये पवमानाय इदन्नमम. ओम भूर्भुवः स्वः अग्ने पवस्व स्वपा अस्मे वर्चः सुवीर्यं दधत्रयं मयि पोषं स्वाहा इदमग्नये पवमानाय इदन्नमम. ओम भूर्भुवः स्वः प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्यामपतयोरयीणाम् idam prajapataye dannamama. So hereafter both ghee and samagri. So those who are offering ghee, they will keep it that, others will offer samagri. Om tvam no agne varunasya vidwan devasya helavaya sisishta yajishto vanhitamah shoshuchano विश्वाद्वेषांसि प्रमुग्धस्मात् स्वाहा इदमग्निवरुणाभ्यामिदं नमः ओम सत्वं नो अग्नि अवमो भवति नेदिष्टो अस्या उषसो विष्टौ अवयक्ष्वनो वरुणं रराणो वीहि मृळिकं सुहवो नयेधि स्वाहा इदमग्निवरुणाभ्यामिदं नमः ओम इमं मे वरुण श्रुदेहव मध्या च मृळय त्वामवस्विराचके स्वाहा इदं वरुणाय इदं नमः ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेळमानो वरुणिः बुद्ध्युरुषं समान आयु प्रमोषिः स्वाहा इदं वरुणाय इदं नमः ओम ये ते शतं वरुण ये सहस्रं यज्ञः पाशा विदत्ता महान्तः तेभिर्नो अद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्गाः स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः सर्केभ्यः इदं नमः ओम मयाश्चाग्नेस्य नभिषस्तिपाश्च सत्यमि त्वमयासि या नो यज्ञं वहास्य या नो देहि भेषजं स्वाहा इदमग्नये अयसेदं नमः ओम उदुत्तमं वरुणपाशमश्मदवाधमं विमध्यमं श्रथाय अथा वयमादित्यव्रते तवा नागसो अदितये स्याम स्वाहा इदं वरुणायादित्यायादितये च इदं नमः ओम भवतन्न समनसौ सचेतसा वरे पसौ मा यज्ञं हिं शिष्टं मा यज्ञपतिं जातवेदसौ शिवौ भवतमद्यनः स्वाहा इदं जातवेदोभ्याम् इदं नमः ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतो स्वाहा ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः ओम स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदं नमः ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदं नमः ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदं नमः ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्च उपासते तयामा मध्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि यद्भद्रं तन्न आसुवा ओम अग्नेन यसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्
योध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा. So today we have Agrawal family, Poonamji and Deepakji with their kids, Prisha and Divisha. And they are celebrating their birthday, Divisha and Prisha. तो कुछ विशेष मंत्र उनके लिए. ओम तनोपाग्नेसि तन्नं मे पाहि आयुर्दाग्नेसि आयुर्मे देहि वर्चोदाग्नेसि वचो मे देहि अग्नेयन्मे तन्वाऊनम तन्म आपृणा स्वाहा. Adorable Lord, you are the protector of our bodies. Please protect my body. Lord, you are the bestower of life. Bestow a long life on me. You are bestower of luster. Bestow luster on me. O Lord, whatever deficiency we have in our body, kindly make it up for us. Om Shatam Jivas Sharado Vardhamanah Shatam Hemantam Shatamo Vasantan Shatam Indragni Savita Brihaspati Shatayusha Avishemam Punarduho Swaha. May you live for 100 springs. May you live for 100 summers. May you live for 100 winters while growing in all aspects of your life. May the Lord, all-knowing, all-pervading, support of the entire universe, grant you all material, intellectual and spiritual sustenance for 100 years again and again. Om Jivasta Jivyasam Sarvamayur Jivyasam Swaha. Om Upajivyasta Upajivyasam Sarvamayur Jivyasam Swaha. Om Sanjivasta Samjivyasam Sarvamayur Jivyasam Swaha. Om Indrajiva Suryajiva Devajiva Jivyasamaham Sarvamayur Jivyasam Swaha. Oh, enlightened people, you have the ability to have good lives, and you have the capacity to increase your span of life. I may also live the full term of my life. Oh God, please grant me life full of all sorts of riches. Please grant me brilliance, dynamism, and O enlightened people, please bless me that I may live to the full term of my life. Om Devasavita Prasuvayajyam Prasuvayajyapatim Bhagaya Divyo Gandharva Ketapu Ketam Nah Punato Vachaspatirvacham Nah Swadato Swaha. O Creator God, speed our sacrifice onward and urge the sacrificer forward to the prosperity. May the shining maintainer of the world, the purifier of our thoughts, purify our thinking, and the may Lord of speech make our tongue sweet. तो आज हम अपने यहाँ होली सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो कुछ विशेष मंत्र इसके लिए गायत्री मंत्र बोलिए. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा. ओम स्वस्ति पंथमनुचरेम सूर्य चंद्रमसाविव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे मही स्वाहा. May we ever pursue our path of prosperity like the sun and the moon. May we move in full cooperation and mutual give and take, without causing injury to each other, and in the mutual right understanding. Om Indra Sresthani Dravinani Dehi Chittim Dakhyasya Subhagattamasme Posham Raina Marishtim Varitanonam Swadmanam Vacha Sudinattamannam Swaha. O resplendent Lord, bless us with the best of the treasures, the spirit of ability and fortune. May we obtain abundance of wealth, security of life, and sweetness of speech, and auspiciousness of our days.
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो पूर्णाहुति करेंगे। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। Okay, with this the Havan is now concluded. And now Pujaniya Prabhu, the bhajan. Mic. Om, Om. पूजनीय हमारे
जी सम्मिलित है हमारे आर्य युवा मंडल के बच्चे और पूनम जी एंड दीपक जी, उनके बच्चे प्रीशान दिविशा, उनके फैमिली फ्रेंड्स, उन सबको आशीर्वाद के लिए मेरे साथ मिल करके बोलिए ओम यूयम जीवत शरदः शतम वर्धमानः यूयम आयुष्मन्तः वर्चस्विनः तेजस्विनः तेजस्विनः श्रीमन्तः श्रीमन्तः भूयासः. भूयासः. It means may you enjoy a life of 100 years, always progressing with full of wisdom, virtue, strength, vitality and prosperity. May welfare come to you and may God bless you. ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाख्यभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः. ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति. ओके, थैंक यू वेरी मच. अब आप आराम से बैठिए, आगे का जो भी कार्यक्रम है देखिए. थैंक यू. नमस्कार एवरीवन. हम सभी की ओर से आप सभी को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं. होरी खेलन आयो शाम, आज जाए रंग में बोरोरी, आज जाए रंग में बोरोरी, आज जाए रंग में बोरोरी. होरी खेलन आयो शाम, आज जाए रंग में बोरोरी. होरी खेलन आयो शाम, आज जाए रंग में बोरोरी. होरी खेलन आयो शाम, आज जाए रंग में बोरोरी, 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 आज जाए रंग में बोरोरी. होरी खेलन आयो शाम, आज जाए रंग में बोरोरी. तोरे तोरे कलश मंगाओ जामे केसर घोरोरी. हाँ, कोरे कोरे कलश मंगाओ जामे केसर घोरोरी. रंग बिरंगो करो, रंग बिरंगो करो, याए कारे ते गोरोरी. होली खेलन आयो शाम, खुल के ताली बजाइए बीट पे. रंग में बोरोरी, होली खेलन आयो शाम,
बसुरिया तोड़ो मरोड़ो री। हाँ होले बांस की जाकी बसुरिया तोड़ो मरोड़ो पीतांबर ल्यो छीन, पीतांबर ल्यो छीन याए पहराए दो चोली रे। होरी खेलन आयो शाम हाथ जाए रंग में छोड़ो रे। लोक लाज मर्यादा सब फागुन में तोड़ो री। लोक लाज मर्यादा सब फागुन में तोड़ो री। हाथ जोर जब कर बीनती, हाथ जोर जब कर बीनती जब जाए छोड़ो री। हाथ जोर जब करे बीनती जब जाए छोड़ो री। होरी खेलन आयो शाम आज जाए रंग में बोरो री। 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 होरी खेलन आयो शाम आज जाए रंग में बोरो री। होरी खेलन आयो शाम आज जाए रंग में बोरो री। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वरीयस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तो अभी 2 दिन पहले हम सब ने होली मनाई। फॉर्मली जो ऑफिशियल होली तो 2 दिन पहले था, तो पर आज हम यहाँ अपने आर्य समाज में सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मनाने से पहले थोड़ी समझते हैं होली क्या है, इसकी क्या हिस्ट्री है, क्या सिग्निफिकेंस है। तो होली अनेक सारे फेस्टिवल्स का एक कॉम्बिनेशन है। अलग अलग जितने भी हमारे त्योहार होते हैं तो वो अलग अलग समय पर अलग अलग कारण उनके साथ जुड़ जाते हैं। शुरुआत में तो कोई एक पर्टिकुलर कारण से कोई फेस्टिवल होता है, बाद में हजारों सालों के हिस्ट्री में नई नई और हिस्टोरिकल, माइथोलॉजिकल, सोशल कॉजेस उसके साथ जुड़ जाते हैं। फेस्टिवल तो अपने आप में लाइफ को सेलिब्रेट करना होता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम मनुष्य हैं और हम सिर्फ रोटी कपड़ा मकान से खुश नहीं होते हैं, वो हमारे बेसिक्स होते हैं। उसके बाद भी हमारा इमोशंस है, माइंड है, और उसको हमेशा एंटरटेन की जरूरत है। व्यक्ति मेहनत करता है पर बीच बीच में उसको रेस्ट की जरूरत है। इसीलिए दो त्योहारों को संस्कृत में पर्व कहते हैं। पर्व का मतलब वो जो गांठ होता है, जैसे आपकी बांस या बैम्बो ट्री में या शुगर केन में देखते हैं, बीच बीच में जो गांठ होता है उसको भी पर्व कहते हैं। मतलब जो ग्रोथ होता है थोड़ी देर के लिए एक पॉइंट पर रुक जाना, जिसका मॉडर्न वर्जन, ऑल्दो इट्स नॉट मॉडर्न, इट्स ए क्रिश्चियन वर्जन, जिसमें हम संडे को छुट्टी करते हैं, है ना। तो ये संडे को भी जो होता है वो एक क्रिश्चियन रिलीजियस कॉज है उसके पीछे। जैसे प्राचीन काल में हमारे हर हफ्ते अष्टमी और प्रतिपदा के दिन छुट्टी हुआ करता था।
तो डे कोई भी हो, मैसेज ये है कि जब व्यक्ति काम करता है तो उसको बीच में रेस्ट चाहिए, एंटरटेन चाहिए। और फेस्टिवल वही एंजॉय करते हैं जो मेहनत करते हैं, जो काम करते हैं। जो 24 घंटे बैठे रहते हैं निकम्मा, उनको तो कोई फेस्टिवल के कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 365 दिन एक होता है। तो जब आप मेहनत करते हैं तो यू नीड ए रेस्ट। आप वैकेशन में जाते हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो आप एंजॉय करते हैं। तो यही पर्पस, यूनिवर्सल ह्यूमन पर्पस यही है, कोई भी फेस्टिवल हो। और मजेदार है, हमारे जो हिंदू ट्रेडिशन में जितने भी फेस्टिवल आप देखेंगे, ठीक है, उसके साथ हम काफी सारा आजकल रिलीजियस चीजें जोड़ देते हैं, पर बड़ी इंटरेस्टिंगली अगर आप उसकी शुरुआत देखेंगे, 70% जितने भी हमारे यहां त्योहार फेस्टिवल है वो रिलीजियस, प्राइमरीली रिलीजियस नहीं है। ठीक है, हम कोई भी अच्छा काम करते हैं तो भगवान की पूजा करते हैं, वो हमारी अपनी श्रद्धा है, बट वो फेस्टिवल इटसेल्फ जो रिलीजियस नहीं है। वो दिवाली हो, होली हो, और ऐसे सैकड़ों फेस्टिवल ऐसे होते हैं। तो होली के बहुत सारे कारण होते हैं, तो हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे जो भी 10-15 मिनट में। पहली चीज होती है, होली होता कब है? फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष का जो पहला दिन है, मीन्स महीने में 2 पक्ष, 2 हाफ होते हैं, डार्क हाफ, ब्राइट हाफ। ब्राइट हाफ की जो एंड है वो पूर्णिमा है। पूर्णिमा के अगले दिन जो होता है हम तो उसी को कहते हैं प्रतिपदा। तो उसी को होली के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और फाल्गुन मास क्या है? जो इंडियन कैलेंडर में जो 12 महीने होते हैं, वो वसंत ऋतु का आगमन है। द स्प्रिंग सीजन जिसको कहते हैं, उसकी शुरुआत होती है। तो पहली चीज है कि प्राचीन काल में ना हमारे भारत में जो भी कुछ खेती बाड़ी, एट द एंड ऑफ द डे प्राचीन जो सिविलाइजेशन है दुनिया में कहीं भी हो, वो तो खेती बाड़ी पर डिपेंड करता था। तो जब भी खेत में फसल आते थे या हार्वेस्ट होकर के आपके यार्ड में आते थे, उसको सेलिब्रेट किया जाता था। और सेलिब्रेट करने का तरीका वो ग्लास से ग्लास टकराने वाला नहीं, बस सेलिब्रेशन की तरीका होता था कि कुछ भी आया उसको पहले भगवान को अर्पित करो। तो पहले जमाने में कैसे अर्पित करते थे, ऑफर करते थे? तो यज्ञ के द्वारा। बाद में हिंदू ट्रेडिशन में यज्ञ के इंपोर्टेंस कम हुआ, उसके जगह मंदिर, मूर्ति, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स को भगवान के रूप में एस्टैब्लिश करना, जिसको हम कहते हैं पूजा पाठ के रूप में। आजकल आप मंदिर में जाकर ऑफर करते हैं, पहले मंदिर वगैरह होता नहीं था, तो यज्ञशाला होती थी, तो यज्ञ में आहुति के रूप में करते थे। तो इस यज्ञ का नाम होता था नवशस्येष्टि। नव कहते हैं नया, न्यू, शस्य कहते हैं हार्वेस्ट, इष्टि कहते हैं यज्ञ। ऐसा यज्ञ जिसमें जो न्यू हार्वेस्ट, जो नया फसल है, उसकी आहुति दी जाती थी। बेसिकली ये 2 साल में 2 बार ये नवशस्येष्टि यज्ञ होता था। एक तो दिवाली जो करते हैं वो उसी का बिगड़ा हुआ रूप है, जो हम लक्ष्मी पूजा वगैरह, वो अलग चीज है। और दूसरा ये जो होली में जो वसंत में आप करते हैं, स्प्रिंग में करते हैं, तो ऑटम हार्वेस्ट और स्प्रिंग हार्वेस्ट। ये जो स्प्रिंग हार्वेस्ट है उसी को पहले जमाने में होली के रूप में सेलिब्रेट किया जाता था। उसका नाम होली क्यों है अभी जानेंगे। पर ये होता था कैसे? यज्ञ में वो नए फसल की आहुति दे करके परमात्मा को थैंक यू, जिसको आप कहते हैं ना, यहाँ यूएसए में आप सेलिब्रेट करते हैं थैंक्स गिविंग डे, तो हमारे यहाँ 2 थैंक्स गिविंग डे होते थे, जिसको मॉडर्न फॉर्म में आजकल आप दिवाली और होली के रूप में जानते। और उनके सेलिब्रेशन की दोनों तरीके भी अलग अलग थे। वो क्यों थे? वेदर और सीजन के हिसाब से।
दोनों में मस्ती होती है, दोनों में उत्सव है, पर दोनों की तरीका अलग है। एक दिया और प्रकाश से, दूसरा रंग और होली से होता था। और इसका नाम होली क्यों पड़ा? वो तो आप किसी को भी पूछे होली क्यों पड़ा, आप स्टोरी के शुरू कर दोगे स्टोरी जी, वो हिरण्यकश्यप की बहन थी। ये सब चीजें बाद में, ये माइथोलॉजिकल स्टोरीज है, मिथ है, जो बाद में हमें जोड़ा। जैसे जैसे हमारी अपनी हिस्ट्री के बारे में, हमारे अपनी पास्ट के बारे में हमारा ज्ञान कम होता गया, तो फिर हमने कहीं ना कहीं ढूंढ के उसको मैच कराने के लिए जो भी मिला उसके साथ एक स्टोरी नरेशन कर दिया। और जब आप किसी भी सच या झूठ स्टोरी को लाखों बार बोलते हैं, लाखों लोगों में बोलते हैं, तो इट बिकम्स द पार्ट ऑफ लाइफ। तो वो होलिका, प्रहलाद, ये तो जब होलिका और प्रहलाद की स्टोरी लिखी नहीं गई थी तब भी होली खेली जाती थी। होलिका प्रहलाद की स्टोरी पुराणों में आता है, जो मैक्सिमम 1700-1800 साल पुराना है जब ये पुराण लिखे गए हैं। और होली की जो रेफरेंस हमारे शास्त्रों में मिलता है वो 4000, 5000, 6000 साल पुरानी इसकी हिस्ट्री मिलती है। तो हम उसमें ज्यादा एकेडमिक डिस्कशन में नहीं जाएंगे, आपकी होली को बर्बाद नहीं करेंगे। पर होली शब्द बनता है होलिका से। होलिका मतलब कोई राक्षसी होलिका नहीं। आयुर्वेद में होलक शब्द का अर्थ होता है जो हाफ बेक्ड ग्रेन होता है, जो नया फसल आता है, वो धान, गेहूं, बरली या जो भी हो, उसको शमी कहते हैं। एक शमी एक तरह की हार्वेस्ट है, वो बरली की तरह। उसको हाफ बेक या रोस्ट किया जाता है और होली के दिन उसी को खाया जाता है या प्रसाद लिया जाता है। जैसे मकर संक्रांति में आप नॉर्थ इंडिया में आप तिल, गुड़, मूंगफली, चना वगैरह खाते हैं। तो आपको पता है हर फेस्टिवल में पर्टिकुलर फूड होता है, और वो फूड जो प्राचीन काल में बनाया गया था उसका जो कनेक्शन था, जो सीजन, वेदर, और वो सीजन के हिसाब से जो बॉडी में चेंजेस आते हैं उसके हिसाब से। मकर संक्रांति सर्दी की शुरुआत का, या बिल्कुल जहां ज्यादा ठंड का समय है उस समय आप रेवड़ी, वो मूंगफली, चने, इस तरह की चीजें खाते हैं जो बॉडी के अंदर गर्मी पैदा करता है। वसंत में इसकी क्या जरूरत थी? नॉर्मली वसंत जो होता है इसमें वैसे तो जब भी कोई सीजन बदलता है तो बीमारियां होती हैं, है ना। इसको संस्कृत में अपने प्राचीन शास्त्र में कहते हैं ऋतु संधि। ऋतु संधि मतलब एक सीजन से तो दूसरे सीजन आता है, तो उन दिनों काफी सारी एलर्जी, कफ, बुखार, ठंड, पेट खराब होना बच्चों के, बड़ों के काफी होता रहता है। तो उन दिनों सबसे ज्यादा सावधानी रखनी पड़ती है कि आपकी खान पान, रहन सहन, ये आप कैसे मेंटेन करें, जिससे कि वो जो सीजन का जो ट्रांजिशन होता है उसमें आप कम बीमार पड़े, क्योंकि बॉडी को टाइम लगता है उसको दोबारा नए सीजन को कोप करने के लिए। अब जैसे आजकल आप ह्यूस्टन में देखते हैं किसी दिन टेम्परेचर इतनी गर्मी हो जाती है कि आपको एसी चलानी पड़ती है और शाम तक फिर आपको हीटर चलाना पड़ता है। चलो यहाँ तो आप एयर कंडीशन घरों में होते हैं तो आप बॉडी को जरूरत नहीं है, आप अपने घर के या गाड़ी के टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं। जब ये सब चीज नहीं था तो बॉडी को ही तो एडजस्ट करना पड़ता है, तो इसीलिए बॉडी को उसी तरह बना के रखना पड़ता था। और प्राचीन काल में जो इसीलिए जो होलिका का जो सेवन है वो कफ और वात, कफ को कंट्रोल करने, और जो स्प्रिंग सीजन में नॉर्मली जो लोगों के अंदर एक थकावट आती है, आप लोगों में बहुतों को फील होता होगा, पैरों में दर्द होता है ना, आप किसी को कफ, जुकाम, एलर्जी होती है या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होता है, ये मोस्टली स्प्रिंग में प्रॉब्लम होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होता है। उसको कंट्रोल करने के लिए ये होलिका को, होलक को खाया जाता है। संस्कृत में इसके लिए आप कहेंगे कि आपने मर्जी से कहीं उठाकर ले आए, कोई ये आजकल वो सोशल मीडिया से, तो इसके लिए कुछ श्लोक आपको आयुर्वेद का रखते हैं।
तृणाग्निम भ्रष्टार्थ पक्वशमी धान्य होलकः। होलक कहते हैं घास फूस के जलाए गए आग में जो शमी या जो हार्वेस्ट, जो धान या गेहूं को जब आधा पकाया जाता है, जलाया जाता है, उसी को होलक कहते हैं। तो अर्ध्वपक्व शमी धान्य तृणभ्रष्टेश्च होलक, होलको अल्पानिलो मेद कफ दोषश्रमापः। ये भाव प्रकाश जो आयुर्वेद का ग्रंथ है, मतलब तिनके आदियों के आग से जलाए गए या भुने गए, जैसे आप वो मक्का वगैरह भूनते हैं, इसी तरह भुने गए ये जो धान्य है, उसको जब हम, उसी को होलक कहते हैं। उसको क्यों खाया जाता है? क्योंकि ये वात पित्त कफ और जो थकावट, इन सबको दूर करने के लिए हेल्प करता है। इसीलिए इस होलक से होलिका शब्द और होलिका से होली शब्द बना। दूसरा जो सिग्निफिकेंस है होली का, वो है कि सेलिब्रेशन ऑफ स्प्रिंग। अब ठंड कम हो गया, कम होता जा रहा है, गर्मी अभी पूरी तरह आई नहीं है, बड़ा सुहावना मौसम है। और ये सुहावना मौसम सिर्फ आप और हमारे लिए नहीं, अगर आप स्प्रिंग में दुनिया में कहीं भी जाएं, किसी भी कोने में जाएं, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ कहीं भी आप जाएं, तो आप बड़ा इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे। पेड़ पौधे पशु पक्षी हर कोई खिलखिलासा मिलेगा आपको। कलरफुल फ्लावर्स आपको इन्हीं दिनों मिलेंगे और सब जगह मिलेंगे आपकी। तो ये जो कलरफुल, जो आप कलर के साथ खेलते हैं, ये कोई रैंडमली बना नहीं है, ये जो प्रकृति के साथ मैच करा के हम ये फेस्टिवल बनाए जाते हैं। इसी तरह ये स्प्रिंग को सेलिब्रेट करने के लिए, उसकी जो कलरफुल नेचर है उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये होली बनाया जाता है। दैट द डिफरेंट दो रीजन है। और अगर आप होली को देखना चाहते हैं, नेचुरली देखना चाहते हैं, आप बाहर निकल के जाओ। आजकल पेड़ पौधों में पत्ते आने लग जाते हैं, अलग अलग कलरफुल के फूल अब आने लग जाते हैं। इवन घासों में भी फूल, जो 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 वाइल्ड फ्लावर्स होते हैं, वो भी आ जाते हैं इन्हीं दिनों। तो नेचर पूरा होली से भरा हुआ होता है। आप रंग ला करके अपने आप को रंगीला बनाते हैं, और नेचर अपने आप रंगीली बनी हुई होती है। और नेचर के साथ अपनी सामंजस्य को, प्रकृति को बनाए रखने के लिए हम सेलिब्रेट करते हैं। इसलिए इसको वसंत उत्सव कहते हैं। प्राचीन काल में हम देखते हैं, अगर जो एंशिएंट लिटरेचर हम पढ़ें, संस्कृत के, प्राकृत के, पाली के जो लिटरेचर है, जरूरी नहीं कि रिलीजियस लिटरेचर हो, कोई काव्य, कोई ऐसे नॉर्मल सेक्युलर लिटरेचर भी, उसमें हम देखते हैं स्प्रिंग फेस्टिवल, जिसको वसंतोत्सव और कहीं कहीं मदनोत्सव के रूप में सेलिब्रेशन का मिलता है। जनरली ये जो स्प्रिंग है वो यंग कपल के लिए ज्यादा मनोहर होता है। जैसे ऑटम सीजन है, कार्तिक और मार्गशीर मास वगैरह, वो स्पिरिचुअलिटी के लिए बड़ा अच्छा वो सीजन होता है। इसी तरह वसंत जो है वो मस्ती के, उल्लास के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है। उसी को सेलिब्रेट हम वसंत उत्सव के रूप में करते थे। आज भी आप देखेंगे दुनिया में अलग अलग सिविलाइजेशन में, देशों में, कंट्रीज में आप देखेंगे उनके वहां स्प्रिंग फेस्टिवल अपने ढंग से होता है। तो हमारे यहाँ होली के रूप में होता है, रंगों के साथ और दूसरी चीजों के साथ होता है। और ये सिर्फ एक्सटर्नल कलर की बात नहीं है, इवन हमारे लाइफ में भी जो कलर है उसको भी सेलिब्रेट करने का नाम होली होता है। लाइफ भी तो फुल ऑफ कलर्स है ना। हमारा लाइफ थोड़ी है कि ये ब्लैक एंड व्हाइट है, ये दुखी है और ये सुखी है, ऐसा नहीं होता है ना। आप रोज या तो हैप्पी या सैड ऐसे थोड़े होते हैं। लाइफ में हजारों शेड्स होते हैं। आप इसको व्हाइट और ब्लैक में नहीं देखते। यहां वो मैथ नहीं चलता 1 + 1 2 होता है या 5 + 5 10 होता है। लाइफ में तो 5 + 5 0 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है।
मतलब पति पत्नी मिलने से दो होता है जरूरी नहीं है ना, पति पत्नी दो हैं भाई, 1+1 मिलने से 2 होता है जरूरी थोड़े ही होता है। ये 200 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लाइफ बर्बाद भी हो सकता है, लाइफ आबाद भी हो सकता है, लाइफ नॉर्मल भी हो सकता है। तो लाइफ की मैथमेटिक्स अलग चलती है, लाइफ के कलर अलग चलते हैं, और इसमें सब तरह के हैं, गुस्सा भी है, प्यार भी है ना, इमोशंस भी हैं, 50 तरह के कलर हैं, ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है, दया भी है, हजारों तरह के कलर हैं, और हम रोज इससे डील करते हैं अलग अलग कलरफुल चीजों के साथ, अपने मन के अंदर, शरीर के अंदर, बाहर के साथ हम डील करते हैं। और इन कलर्स की अपने इंपॉर्टेंस है। आप किसी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, किसी को ज्यादा भाव दोगे तो प्रॉब्लम हो जाता है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा इमोशनल है वो भी प्रॉब्लमेटिक है, जिसके अंदर इमोशन है नहीं वो भी प्रॉब्लमेटिक है। तो हर चीज के अपने एक बैलेंस है। होली में तो यही है ना, हर कलर को आप एंजॉय करते हैं। और हर व्यक्ति के अंदर कलरों का एक फाउंटेन है, अलग अलग कलर का। कभी कभी दिन में ही आपके 3-4 कलर निकल जाते हैं, है ना। एक ही दिन में आपके 2-3 कलर निकल जाते हैं। सुबह गुस्सा में फाइटिंग करके दुनिया झगड़ा किया, 4 बजे तक आप सॉरी बोलने लग गए, रात को 8 बजे तक प्यार भी हो गया। तो देखिए 3 कलर तो यही आ जाता है ना। तो ये हमारे अंदर भरे पड़े हैं कलर्स, और ये साल भर में हजारों तरह के कलर्स निकलते रहते हैं। उन कलर्स को जो पहचानता है, उनको रिकॉग्नाइज करता है और अपने ढंग से कलर यूज करता है, वो तो स्मार्ट हो जाता है। उसकी लाइफ में प्रॉब्लम कम होते हैं। ऐसा नहीं कि लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आता है, लाइफ में प्रॉब्लम तो आता है, पर वो प्रॉब्लम को वो बड़े आसानी से झेल लेता है। और जो स्मार्ट नहीं है वो किसी पर्टिकुलर कलर के साथ चिपक जाते हैं, तो फिर जिंदगी भर पछताते, परेशान रहते हैं, दूसरों को भी परेशानी का कारण बनते हैं। जो कलर्स के बीच में जो कलर्स की जो डाइवर्सिटी है, उसके बीच में जो बैलेंस बनाना जानता है, अच्छे में भी, बुरे में भी, सही में भी, गलत में भी, वो फिर जिंदगी में आगे बढ़ता है। आपको पता है कि सारे जो कलर हैं वो व्हाइट कलर से आते हैं, और जो मिल जाते हैं, सब कलर को मिला दो तो ब्लैक बन जाते हैं। और हमारे स्पिरिचुअलिटी में व्हाइटनेस जो होता है वो क्लीनिनेस, प्यूरिटी को रिप्रेजेंट करता है। जब आप सारे कलर्स को लाइफ में मिला देते हो तो वो फिर ब्लैक बन जाते हैं, पर वो आते हैं आपके माइंड से। जब आपकी माइंड प्योर हो जाए, प्योर होने का क्या मतलब होता है, जब आप दुनियादारी के ये जो गुस्सा, नफरत, जेलेसी, ईगो, इवन जो प्यार होता है ना, ये कोई, इसके कारण भी बड़े नुकसान होते हैं जी। हर चीज की बैलेंस जरूरी होता है। जब आप ब्लाइंडली प्यार करते हैं, आपके बच्चे बिगड़ जाते हैं। जो ब्लाइंडली प्यार करते हैं, बहुतों के साथ आप जस्टिस नहीं करते, क्योंकि किसी से आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बाकियों के साथ आप बाइस्ड होते हैं। ऐसा नहीं कि प्यार कोई बड़ा रसगुल्ला टाइप का है और उसका अपोजिट खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। बात है कि आप बैलेंस कितना बनाते हैं। और बैलेंस तब बनता है जब आपकी माइंड कूल हो, शांत हो। जिसका मन जितना शांत होगा, थॉटफुल होगा, उसकी कलर्स भी उतने ही मेजर्ड होकर निकलेंगे। और जिसके अंदर हु केयर्स है, ठीक है, कभी कभी ये आजकल इंडिया में देखते हैं ना, वो केमिकल कलर भी लगा देते हैं, वो सालों तक छूटता नहीं है, तो वही केमिकल कलर वाला लगा करके घूमेंगे, जिंदगी भर पछताते हैं। तो सिचुएशन, होली हमारे लिए जो एक मैसेज देता है, कंक्लूड करेंगे, आपको ज्यादा बोर नहीं करेंगे। तो जो कंक्लूजन है कि होली का एक भी लाइफ में, हर फेस्टिवल का एक मैसेज होता है। तो मैसेज क्या है, हर कलर को लाइफ में आने दो।
अब कोई भी कलर आता है इवन आपको पसंद भी नहीं है तो भी उस कलर को एंजॉय करना सीखो। हर कलर को इंपॉर्टेंस देना सीखो और हर कलर को एंजॉय करना सीखो। सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में मत चिपक जाओ या ये सोच के मत बैठ जाओ कि मुझे तो यही कलर पसंद है, मुझे और कोई नहीं चाहिए। जब भी तुम किसी पर्टिकुलर कलर के साथ चिपक जाते हो, होली में सबसे ज्यादा तुम्हें ही परेशान करते हैं, है ना। जो कहेगा मैं रंग नहीं खेलूंगा तो क्या होता है, सबसे ज्यादा उसी में रंग लगाया जाता है। या तो चुपचाप भाग जाए, दरवाजा बंद करके बैठ जाए। अगर खुले में है, बोले जी नहीं आई डोंट लाइक द कलर, तो दोस्त सबसे ज्यादा कलर उसी को लगाते हैं। लाइफ में यही थ्योरी है, जब भी आप चीजों को लाइक और डिसलाइक के चक्कर में बहुत स्टबर्न हो जाते हो, तो भगवान की सिस्टम ऐसा है कि आप जितना ज्यादा स्ट्रांगली डिसलाइक फील करते हो, वो आपके सामने इतने ज्यादा आते हैं। अब ये एक नेचर है, ये ना हमारे और आपके हाथ में है। इसीलिए जब आप बैलेंस बनाना सीख जाते हो, सुख आए तो झेल लूंगा, दुख आए तो झेल लूंगा, अच्छा है तो झेल लूंगा, बुरा है तो झेल लूंगा, जैसा भी होगा हैंडल कर लूंगा। बच्चों को पालना हमारा काम है, बच्चे जैसे भी बन जाए उनसे वो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी सिचुएशन हो, जब हर कलर को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी आ जाती है, देन यू आर एंजॉइंग द होली। जब अभी भी आप स्टबर्न है तो फिर होली में भी आप रोगे। जीवन तो त्योहारों से भरा है। त्योहार का संस्कृत में शब्द है उत्सव, और उत्सव का मतलब होता है मस्ती। वो आप मैटेरियल जगत में हैं या जो स्पिरिचुअल लाइफ जीते हैं, उनकी अपनी मस्ती है, वो अंदर मस्त रहते हैं। हम आप बाहरी दुनिया में ज्यादा मस्त रहते हैं। पर मस्ती में रहना जरूरी है, क्योंकि लाइफ में सिर्फ रोटी कपड़ा मकान से गुजारा नहीं चलता। एट द एंड ऑफ द डे हमें खुशी ढूंढनी होती है, हम खुशी के लिए जीते हैं। और ये खुशी नॉन स्टॉप आप जी सकते हैं, जितना बढ़िया होली को समझें, अंदर से समझें, तो आपकी पूरी साल भर में जो कलर आएंगे, तो हर कलर को आप एंजॉय कर सकते हैं। तो परमात्मा करें आपके जीवन में भी होली हो, हर तरह के रंग भरें और हमेशा भरें, और आज की होली भी आपके लिए शुभ हो। परमात्मा करें आप सुखी रहें, हर तरह के रंगों से भरे रहें। इसी विचार के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सब जानते हैं, अगले महीने के पहले वीकेंड पे, जो अप्रैल 2 और 3 को यहाँ पे फाउंडेशन डे आर्य समाज का हर साल अप्रैल के फर्स्ट वीकेंड पे हम सेलिब्रेट करते हैं। तो इस साल पिछले साल कोविड की वजह से ज़्यादा नहीं हो पाया था, बट इस साल हम फिर से हेल्थ फेयर, मिनी हेल्थ फेयर स्टार्ट किया है। तो उस दिन शनिवार को 2 अप्रैल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक योगा, 8 बजे से 9 बजे तक एक वॉक, 5 किलोमीटर वॉक है। सेवा इंटरनेशनल और दुर्गाबाड़ी और जेवीबी ये सब कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जो जितनी भी संस्थाएं हैं शिल्लर रोड पर। उसके बाद 8:30 से 12 बजे तक ब्लड टेस्टिंग ड्राइव है। उसकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, पर बहुत ही रीजनेबल रेट पे आपको पूरा ब्लड पैनल टेस्ट हो सकता है। 9 से 3 बजे तक ब्लड ड्राइव है। ये हम साल में 2 बार ही तो करते ही हैं। पिछली बार हमने सारे रिकॉर्ड ब्रेक किए थे, और आशा है कि इस बारी वो रिकॉर्ड भी ब्रेक हो जाएगा। और 9:30 से 10:30 बजे तक बाहर यज्ञ होगा। तो जो लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, प्लीज़ ज्वाइन करिए। उसी टाइम पर आपसा का भी यज्ञ चल रहा होगा ऑनलाइन। तो प्लीज़ आइए। इसके रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स हम अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करेंगे और सबको सर्कुलेट भी करेंगे, पर प्लीज़ कीप एन आई ऑन दैट। 3 अप्रैल को
सुबह 8 से 9:15 बजे तक योगा हमारा रेगुलर प्रोग्राम, और फिर 9:45 से 12 बजे तक सत्संग। हमारे वीकली प्रोग्राम्स जैसे पिछले सप्ताह भी बताया था, योगा का फिर से 2 हफ्ते पहले ही शुरू हुआ है, सैटरडे संडे, तो प्लीज़ आइए, उसका आनंद लीजिए। और हमारा रेगुलर प्रोग्राम 9:45 से 12 बजे तक सत्संग और प्रसाद, और DAVSS और VSS ग्लोबल की क्लासेस तो चल ही रही हैं। आज आर्य युवा मंडल के बच्चे भी आए हुए हैं, तो उनको आप देखेंगे होली में बाहर। तो अब हमारा कल्चरल प्रोग्राम है, तो DAV संस्कृति स्कूल के कुछ बच्चे, कुसुम जी ने जो हमारे डांस इंस्ट्रक्टर हैं, उन्होंने बच्चों को तैयार किया है एक डांस के प्रेजेंटेशन के लिए, तो आइए उसका आनंद लें। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे, मस्ती में मचती हैं धूमें बस्ती में। बहारे झूलों की, राहों में कतारे फूलों की, यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन, बालों में खिलती है कलियां गालों में। कहीं दंगल शौक जवानों के, कहीं करतब तीर कमानों के, यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं। दिल भर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम, मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं।
Yeah, please give them a big hand. बहुत दिन बाद यहाँ पर आज स्टेज पे बच्चों का परफॉर्मेंस देखने को मिला है, सो इट्स वेरी encouraging कि अब hopefully we can get everybody back next और प्रोग्राम और भी होंगे. So our next आज का next program is DAV Montessori और DAV संस्कृति स्कूल के बच्चे they will present a song, but और उसके बाद we will all move out for little celebration outside near Yagyashala. तो भोजन का जो अरेंजमेंट है वो वहाँ पर है और there will be we are not playing with colors this time, but hopefully there will be music and dhol, so you will enjoy the festive spirit. So now as the kids are coming up, आजा बेटा. So बच्चों के नाम है प्रिशा अग्रवाल, तिसिया वर्मा, शिवम केलकर, प्रिशा सिंह, कियारा एंड मायरा नपुने और दिविशा. शी इज द यंगेस्ट ऑफ देम और आज उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं. आई थिंक फ्राइडे को था बर्थडे, सो प्लीज विश हैप्पी बर्थडे दिविशा. They will be singing a prayer. हे भगवान तुझे प्रणाम. Hello. They will be singing a भजन. हालांकि डांस के इतने प्यारे परफॉर्मेंस के बच्चों के बाद भजन अभी अगली बार से रिक्वेस्ट करूंगी हमारे बच्चों को पहले गवा दिया करिए फिर डांस कराया करिए. So they will be singing, but I hope you will appreciate it. प्रभु जी हमें प्रेम सागर से भर दो. प्रभु जी हमें प्रेम सागर से भर दो. हरो द्वेष अभिमान मन शुद्ध कर दो. इन बच्चों का प्रोनाउंसिएशन पे जरूर ध्यान दीजिएगा कि कितने शुद्ध तरीके से एक एक शब्द बोलते हैं.
शोध कर दो। प्रभु हमें प्रेम सागर से भर दो। चक्र चलते हर पल ये देखो गगन में जलते। हमारी शक्ति से सृष्टि चक्र चलते हर पल ये देखो गगन में जलते। अभय बनो अभय बनो अभय बनो मुझको तुम हमें प्रेम सागर से भर दो। तेरी आज्ञा में चलते रहे हम हर पल सजगता में ढलते रहे हम। तेरी आज्ञा में चलते रहे हम गोदी में बालक से पलते रहे हम। श्रद्धा समर्पण के भावों से भर दो। हरो द्वेष अभिमान मन शोध कर दो। भावों से भर दो। द्वेष अभिमान मन शोध कर दो। द्वेष अभिमान मन शोध कर दो। सागर से भर दो। द्वेष अभिमान मन शोध कर दो। द्वेष अभिमान मन शोध कर दो। द्वेष अभिमान मन शोध कर दो। अभी प्लीज अब आरती और आरती के बाद फिर हम सब लोग बाहर जाएंगे, तो प्लीज खड़े हो जाइए आरती के लिए। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ में किसकी। स्वामी शरण गहूँ में किसकी। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी सब भाग देखे सन्मार्ग के पथिक हो दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेव। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जो बोले सो अभय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की योगेश्वर श्री कृष्ण जी की महर्षि दयानंद जी की ओम का झंडा ऊंचा रहे आर्य समाज अंधकार हरे वेद की ज्योति ज्योति हरे प्रणव ध्वनि रघुधी राजा राजा मीन्स मर्जी रघुधी राजा देव राजी ना सिखले हर वेले उसदा तू वेल मीन्स हर घड़ी हर पल हर वेले उसदा तू नाम लेना सीख ले रघुधी राजा देवी राजी रहना सीख ले रघुधी राजा देवी राजी रहना सीख ले रघुधी राजा देवी राजी रहना सीख ले रघुधी राजा देवी राजी हर वेले उसदा तू ताली बजाइए जोर जोर से हर वेले उसदा तू नाम लेना सीख ले हर वेले उसदा तू नाम लेना सीख ले रघुधी राजा देवी राजी रहना सीख ले
शाम ते सवेरे गुण, शाम ते सवेरे गुण उसदा तू गाई जा। उसने जो दिता तू शुक्र मनाई जा। शाम ते सवेरे गुण उसदा तू गाई जा। तेरा भाना, भाना जो आपने दिया प्रसाद, तेरा भाना मीठा लागे कहना वंदे सीख ले। तेरा भाना मीठा लागे कहना वंदे सीख ले। प्रभु दी रजा दे विच, प्रभु दी रजा दे विच, प्रभु दी रजा दे विच राजी रहना सीख ले। श्रद्धा नाल मन जेड़ा, श्रद्धा नाल मन जेड़ा कदी नहीं भुलदा। हनेरिया पावाला भावे राहे झुलदा। श्रद्धा नाल मन जेड़ा कदी नहीं भुलदा। नाम दे सामंद रज, नाम दे सामंद रज वैणा बंदे सिख ले। नाम दे सामंद रज वैणा बंदे सिख ले। प्रभु दी रजा, राजी रहना सिख ले। प्रभु दी रजा, राजी रहना ईश्वर दी नहीं पहचानदा। कृपा ईश्वर दी नहीं पहचानदा। की है तेरे मन जो, की है तेरे मन जो सब कुछ जानदा। कृपा ईश्वर दी नहीं पहचानदा। की है तेरे मन जो, की है तेरे मन जो सब कुछ जानदा। भजो
बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। हाँ हाँ ओके। भोजन मंत्र के पहले हमारे राजा जी तथागत बंगा जी के लिए और हमारे अतुल भाई के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। इनके तबले के संग में और अतुल भाई के मजीरे के संग में मुझे बहुत मजा आता है। Now we will do the भोजन मंत्र। अन्नपते अन्नस्य नो देहननीवस्य शुष्मिणा प्रप्रदातारमुतारिषभुजं नो देहि दुपदे च दुष्पदे। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सबको सादर अभिवादन, नमस्ते। बाहर जाइएगा। डाइनिंग भोजन जो है पीछे यज्ञशाला में लगा है। मेरे मालिक की दुकान पर सबका जीवन खाता है। मेरे मालिक की दुकान पर सबका जीवन खाता है। जैसा जिसने कर्म किया वो, जैसा जिसने कर्म किया वो वैसा ही फल पाता है। वो मेरे मालिक की दुकान पर सबका जीवन खाता है। वो मेरे मालिक की दुकान पर सबका जीवन खाता है। क्या साधु क्या संत गृहस्थी क्या राजा क्या रानी, उसकी पुस्तक में लिखी है सबकी प्रेम कहानी। लेन देन और जमा खर्च का, ओ लेन देन और जमा खर्च का सही हिसाब लगाता है। वो मेरे मालिक की दुकान पर
है।